Good evening, students. Today we are going to start with our third chapter in our NCERT textbook, that is metals and non-metals. We have already studied our two chapters, that is acid, bases and salt and chemical reaction and equation. I hope that two chapters are clear to you all as we have given the test also. Now, moving to the third chapter, metals and non-metals. You have studied about metals and non-metals in your class 9th also, class 8th also, in some sort of things in conclusion type. In now we will go more in detail about this chapter, starting with the basic things. Now in class 9th you have learnt about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. Okay, now topics to be covered in this chapters is introduction, classification of elements, physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals, how do metals and non-metals react with each other, what are the occurrence of metals, and corrosion. Again a very good and very important and interesting chapter. Introduction. Let us start with the very beginning introduction part of the chapter. Now, as we know, scientists has discovered 118 elements. In our periodic table, we have 118 elements. As you can see, this is the periodic table in your screen. There are 118 elements. Okay. This 18 elements, each element has their unique discovery, unique fascinating story regarding them. The discovery of the elements started about 8,000 years ago. Can you imagine 8,000 years ago the इसकी डिस्कवरी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी स्टार्ट हो चुकी थी. कुछ एलिमेंट्स नेचर से मिल गए, कुछ ह्यूमन बीइंग ने फाइंड किए और कुछ ह्यूमन बीइंग ने लैब्स में प्रिपेयर किए. The one which human beings prepare in the labs are known as radioactive elements. इस periodic table में भी, this periodic table also, the elements have been classified on the basis of their metals and non-metals. इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का एंड इसको राइट साइड बोलते हो आप पीरियोडिक टेबल का. दिस इज नोन एज राइट साइड ऑफ अ पीरियोडिक table. As you can see, this is known as the right side of the periodic table and this is your left side of the periodic table. Okay, so they consist of metals also, they consist of non-metals also, and they consist of metalloids also. So introduction, scientists have discovered 118 elements. They have discovered your 118 elements. Okay, 118 elements. Scientists have discovered 118 elements. Each of the 118 elements is unique. Discovery of the elements started about 8,000 years ago, and in our day-to-day life we use different elements or come across different types of elements that you all know. Next, periodic table as you see. Now beginning with the chapter, let us begin with the chapter. How are elements classified? Elements are classified into three categories. How are they classified? They are classified into three categories, that is, you can know is metals, non-metals and metalloids. They have been classified into three categories: metals, non-metals and metalloids. Now what are metals? दिमाग में आया कुछ? Think of some uses of metals or non-metals in our day to day life और characterize them. कुछ आया दिमाग में देखने के? आसपास कुछ देखा अभी तो याद आया कि metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं, metalloids क्या होते हैं? नहीं आया? तो 9th स्टैंडर्ड में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि मैटर को क्लासीफाई किया था हमने प्योर इम्प्योर में. प्योर को हमने दो चीज़ में क्लासीफाई किया था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स. देन एलिमेंट्स वर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, लेट अस सी, हम देखेंगे धीरे धीरे डिस्कशन में आगे. ये आपके स्लाइड में आप सर्टेन मेटल्स देख सकते हो. निकल मेटल है, रुबीडियम है, गोल्ड है, कॉपर है. गोल्ड और कॉपर और सिल्वर या आयरन तो आ ही गया होगा दिमाग में जब मेटल बोला है. तो और भी बहुत सारे मेटल्स है, निकल है, रुबीडियम है. ठीक है, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था उसमें 118 एलिमेंट्स है. उन एलिमेंट्स में आपके मेटल्स है, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स है और नोबल गैसेस भी है. नॉन मेटल्स देखो, कार्बन है, कार्बन का एलोट्रोप डायमंड है. ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? द वन विच हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. नहीं, एलोट्रोप्स इन द सेंस द वन विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. डिटेल में हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे. ओके, कार्बन के एलोट्रोप्स. ठीक है, और भी बहुत सारे, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, इसमें से मेटलॉइड भी है. ठीक है, ये मेटलॉइड्स है.
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम मेटलॉइड्स है। कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर आपके क्या है, नॉन मेटल्स है। सी मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, जैसे मैंने आपको भी आगे भी बताया आपको, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट दैट इज your this part is your metalloid, and the rest this diamond, carbon, phosphorus, and this sulfur part is your non metalloid, नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में कौन से सिलिकॉन है, बोरॉन है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है। ओके, यू कैन सी एग्जाम्पल मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में सर्टन दिया है मेटल्स का, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन सिम्बॉल्स के साथ। नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। मेटलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। ओके, नाउ let us see in detail what do you mean by metals, what do you mean by non metals, and what do you mean by metalloids. Okay, definition आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन में। metals, now what is the metals? Metals are elements which tend to form cations. Cations मतलब the one which has plus charge. Okay, they are known as metals, or you can say by losing electrons. Definition wise में अगर हम electron wise पढ़ेंगे, what do you mean by metals? The one which easily lose the electrons to form cations, or cations are also known as electropositive elements. उसको हम metals बोलते हैं, ठीक है। Now, where are metals placed? Metals are placed at the left hand side, in the middle and at the bottom of the periodic table. Periodic table जो आपने देखा था आगे, अगर आप ये periodic table देखोगे तो इसमें आपका metals कहाँ है? Metals are placed on the left hand side. Okay, this side is your metal. Wait, I will show you. Pointing by this arrow, this is your metal part, ठीक है, except hydrogen. Hydrogen is not considered to be a metal. हाइड्रोजन को हम मेटल कंसिडर नहीं करते। सो ये पार्ट आपका मिडिल पार्ट, यहाँ पे मिडिल वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मेटल्स है आपके, ठीक है। और आपका बॉटम साइड पे there is a metal placed. Okay, for example, gold, silver, copper, tin, lead, iron, mercury are typical known as metals. Okay, hope this thing is clear to you. Next, non-metals, the elements which tend to form anions, जो नेगेटिव आयंस बनाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला Cl माइनस, तो Cl माइनस है तो Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनायन बनाया, तो Cl क्या है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल। ओके, जैसे Na प्लस बोला मैंने, तो सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो द वन विच फॉर्म कैटायंस इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट आर नोन एज मेटल्स, ठीक है, ऑक्टेट या ड्यूप्टेट। नाउ देयर आर 22 नॉन मेटल्स। आपके पीरियोडिक टेबल में कितने नॉन मेटल्स है, 22। सो मोस्ट ऑफ दिस नॉन मेटल्स आर गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में होता है, कुछ सॉलिड स्टेट में होता है, except bromine. Bromine is the only non-metal which is liquid under normal condition. Okay, bromine is the only non-metal which is liquid under normal condition. Non-metals कहाँ placed है, on the right hand side in the upper middle part of the periodic table. Where are the non-metals? They are on the right hand side. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये right hand side में upper part of the periodic table में, upper part of the periodic table, this upper part of the periodic table, your non-metals have been placed. Okay, now this are your noble gases. Okay, this whole this are your, wait, cleared है, ठीक है। सो ये आपका पीरियोडिक टेबल, इट इज़ वेरी एसेंशियल, जो हम 5th चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। व्हाट आर मेटलॉइड्स? द एलिमेंट्स विच बिहेव like metals as well as non-metals. The elements which behave like metals as well as non-metals are called metalloids. उसको क्या बोलते हैं, metalloids. So metalloids are located at the end of the non-metals, at the left end of the non-metals. So definitions are clear to you. What are metals, what are non-metals, ठीक है। जैसे मैंने आपको non-metals बोला, non-metals are gaseous, सॉलिड्स है, कुछ सॉलिड्स है, कुछ लिक्विड है। लिक्विड क्या है, ब्रोमाइन।
सॉलिड में हो गया आपका कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन, लिक्विड में हो गया ब्रोमीन, गैशियस में हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दे आर गैशियस नॉन मेटल्स। ओके, क्लियर्ड है। सो मेटल्स जनरली समझ में आया, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स। नाउ लेट अस मूव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? फर्स्ट, ये आपने ऑलरेडी स्टडी भी किया है आपके 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, बट हम इसको वापस रिवाइज करेंगे। मेटल्स आर malleable. Now what do you mean by malleable? This means that metals can be hammered into a very thin sheet. For example, gold and silver are the most malleable metals. Hammered into thin sheets. थिन शीट्स मतलब एक बार हैमर करोगे, प्रेस उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल आप घर पे यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, फ्रेश रैप करने के लिए, मतलब वो एल्यूमिनियम मेटल था, उसको आपने इतना थिन शीट में हैमर्ड किया और कन्वर्ट किया कि आप उसको फॉइल्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, मोस्टली गोल्ड। देखो गोल्ड था, गोल्ड का बार है, उसको थिन शीट में कितना पतला थिन शीट में कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, metals are ductile. This means that metals can be drawn into thin wires. For example, gold, silver and copper are the most among the most ductile metals. मतलब आप उसको ड्रॉ कर सकते हो थिन वायर्स के फॉर्म में, एज यू कैन से वायर्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एकदम पतला सा। ओके, डक्टाइल, दैट मीन्स डक्टिलिटी। Next, physical properties. Metals are good conductors of heat and electricity. For example, silver, copper and aluminum are the good conductors of heat and electricity. ठीक है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई दे आर यूज। देखो कॉपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते, ठीक है। कॉपर एज कम्पेयर टू सिल्वर बहुत चीप है, इसलिए कॉपर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज, वहाँ पे लिखा भी है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लश्यरस। लश्यरस दिमाग में आया, शाइन करना। सो दिस मीन्स दैट मेटल्स आर शाइनी। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक लश्यर, क्योंकि वो मेटल है, तो मेटल की वजह से उसको क्या बोला गया है, मेटेलिक लश्यर्स। Okay, metals can be polished, as you know. Now, metals are generally solid. Almost all the metals are solid except mercury, which is liquid at room temperature. Thermometers में आप देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, वो रूम टेम्परेचर में। बाकी कोई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, बट रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं हमारे, रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी क्या है, आपका लिक्विड है। ओके, सो एज यू कैन सी दिस स्लाइड, malleable, ductile, conductors. Okay, now pay attention. All the metals are hard except sodium and potassium. बाकी सब मेटल्स को आप इजीली कट नहीं कर सकते, बट सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो सोडियम मेटल है, उसके हाथ में नाइफ है, वो ईजिली कट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोडियम मेटल के होंगे वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं ये, सॉरी, सोडियम एंड पोटेशियम के बहुत ज़्यादा कम होंगे, इसलिए वो इजीली कट हो सकता है। एंड दे आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स, सो सोडियम एंड पोटेशियम्स आर केप्ट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमको उसको केरोसिन में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सोडियम और पोटेशियम को खुला रखा, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला आपको गुड कंडक्टर्स है तो बैड कंडक्टर्स भी होंगे, जैसे हमने कंडक्टर्स का पढ़ा, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर। सेम वे your mercury and lead are the poor conductors of heat. So they ask you in exam which is the good conductor, 1 marks में पूछा जाता है, give one example of metal which is good conductor of heat. गुड कंडक्टर पूछा तो आप कॉपर लिख सकते हो, एल्यूमिनियम लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, बट अगर बेस्ट कंडक्टर पूछा तो बेस्ट कंडक्टर में आप क्या मेंशन करोगे, यू हैव टू मेंशन इन बेस्ट कंडक्टर दैट इज योर सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको मेंशन करोगे, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, दैट यू हैव टू मेंशन। पुअर कंडक्टर पूछा तो पुअर कंडक्टर में आ जाएगा आपका मर्क्यूरी और लेड, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किया है डक्टाइल, एल्यूमिनियम फॉइल, एकदम मेलिएबल, ठीक है। Next property, metals have a very high tensile strength. Metals are very strong. They bear a lot of stress.
देख सकते हो आप यहाँ पे ब्रिज, यहाँ पे आप एक ब्रिज देख सकते हो। आपके ये स्लाइड में मैंने एक ब्रिज बनाया है, सॉरी बनाया नहीं है, फोटो डाली है ब्रिज की। दिस ब्रिज यू कैन सी, सो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन मी दैट दे हैव अ वेरी गुड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेंचेस में जो आप बैठते हो क्लासेस में, अभी बहुत टाइम हो गया क्लासरूम में बैठे हुए, यू मस्ट बी गेटिंग बोर्ड, यू मस्ट मिसिंग योर क्लासेस। कुछ नहीं, बैठोगे जल्दी बैठोगे, एवरीथिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल। सो घर पे ही देख लो आप, फॉर एग्जांपल आपके घर पे कुछ होगा, आयरन का चेयर होगा या कुछ होगा, तो दे हैव अ वेरी गुड आयरन के झूले, स्विंग्स, ठीक है। सो दे हैव अ वेरी गुड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो बहुत अच्छे से पकड़ सकता है चीज़ों को, ठीक है। इट कैन होल्ड वेरी क्विकली। नेक्स्ट, मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर हार्ड। Most metals except sodium and potassium are hard. I have explained you, sodium and potassium can be cut easily with a knife. Next, metals can form alloys with other metals. Now alloys हम last topic of the chapter में पढ़ेंगे, corrosion जहाँ पे, वहाँ पे हम alloys को different study करेंगे। But alloys I think so आपको याद है, अपने 8th standard में या 9th standard में alloys के बारे में पढ़ा है। Alloys is a homogeneous mixture of either a metal or a non-metal or two metals or two non-metals. homogeneous मतलब सेम, ठीक है, कॉम्पोजिशन सेम होना। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज इज एलॉय। हम डिटेल में स्टडी करेंगे अच्छे से कि एलॉय कौन से एलॉय आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस इन द सेंस, आप जब उसको हैमर करोगे, आप बजाओगे इन द सेंस आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक आउट करोगे, सो इट प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ साउंड, रिंगिंग साउंड। बेस्ट एग्जांपल स्कूल बेल्स, अगेन स्कूल्स पे आ गए मैम, मिस कर रहे हैं स्कूल्स। यस वी आर, इवन वी एज अ टीचर्स आर मिसिंग, यू एज अ स्टूडेंट्स आर मिसिंग, ठीक है। कुछ नहीं, बैक टू नॉर्मल अगेन। सो अगर स्कूल बेल्स बजता है, मतलब उसमें वो एक रॉड जैसा लगाया जाता है, उसको ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, सो सोनोरस, ठीक है। नेक्स्ट, most metals except sodium and potassium have high melting and boiling point. Again I said you, high melting and boiling point in the sense forces of attraction की मदद से होता है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th का टॉपिक्स भूलने नहीं है, बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। तो आप देखोगे तो मेटल्स हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स को सेपरेट करने में टाइम लगता है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ओके, so this were the physical properties of metals. Now let us move to physical properties of non-metals. Okay. Okay, before going to physical properties of non-metals, as you can see in your chapter एक्टिविटीज़ अगर आप देखने जाओगे आपके टेक्स्ट बुक्स में, एक्टिविटी 3.1 टेक सैम्पल्स ऑफ, हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है सब उस पर बेस्ड है, तो आप सारी एक्टिविटीज़ को एक बार गो थ्रू करोगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7 ऑल्सो। तो आप ये एक्टिविटी देखोगे और चेक करोगे कि हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर की है कि नहीं, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझ में आई है कि नहीं। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइल। नाउ व्हाट डू मीन बाय ब्रिटाइल? मीन्स वन हैमर्ड या फिर कोई फोर्स अप्लाई किया तो वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए। सो नॉन मेटल्स विच सॉलिड नॉन मेटल्स ब्रेक अप इनटू पीसेस व्हेन pressed hard or you can say hammered. For example, सल्फ़र यहाँ पे हैमर्ड आएगा, जस्ट मेक करेक्शन। ओके, स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ जो हार्ड लिखा है ना, यहाँ पे हार्ड एंड हैमर्ड, इसको हैमर्ड कर देना, ठीक है। हैमर्ड इन द सेंस पता है ना, ब्रेक डाउन होना, मतलब मारना, HAMMERED। फॉर एग्जाम्पल सल्फ़र एंड रेड फॉस्फोरस आर ब्रिटाइल, मतलब सल्फ़र और रेड फॉस्फोरस क्या है, ब्रिटाइल है नेचर में, तो जब आप उसको बीट करोगे तो वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में एकदम। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। Third, non-metals are insulators. Insulators in the sense they are bad conductor of heat and electricity. That is, they do not have free electrons. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कंडक्ट करने के इलेक्ट्रिसिटी में, मेटल्स में होते हैं, ठीक है। सो फ्री, हाउएवर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शंस है तो एक्सेप्शंस भी याद
करने पड़ेंगे. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फॉर्म में कि विच इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज ग्रेफाइट. योर पेंसिल लिड कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. अगेन यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गई है. ओके, non-metals don't have luster. Non-metals are not shiny. However, graphite and iodine are the only non-metals which are metallic luster. Okay. Next, non-metals usually have low density and soft. They have low density. Non-metals usually have low density and are soft, except diamond, which is the hardest. Okay. Next, 6 physical properties. Non-metals have low tensile strength and low melting and boiling points. They don't have a very good strength. 7th, non-metals are non-sonorous. They do not produce ringing sound. 8th, non-metals may be solid, liquid or gases at room temperature, as I have discussed it already. For example, under room temperature conditions, sulfur and phosphorus are solid. Bromine is liquid, whereas hydrogen, oxygen, nitrogen are gases. Okay. Next, so this were the physical properties of metals and non-metals that we have studied. I hope the physical and chemical physical properties of metals and non-metals are clear to you. So we are going to start with we have started with our chapter. In next class we are going to study with the chemical properties of metals and non-metals. So physical properties of metals and non-metals, definitions of malleability, ductile, that should be written in your notes. Hope the things are clear to you. If you have any doubts, you can ask me in the group. Thank you.